बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to F6 online support program. This is a lecture for first year. Today is the fourth lecture of chapter number 2, Vectors and Equilibrium. We will cover from page number 69 to 73, that comprises of short questions and numerical problems. For numerical number 1, a person throws a ball straight up with a speed of 12 meters per second. If the bus is moving at 25 meters per second, what is the velocity of the ball to an observer on ground? So there are two velocities. First is the velocity of a ball. The other one is the velocity of bus. So you have to basically calculate the velocity of ball that is appear to the observer that is standing on the ground. So basically it's the resultant. So v is equals to vx square plus vy square. By putting the values, we have 28 meter per second. Now for direction theta, it's tangent inverse y upon x. So this is vertical as it is going straight up. So this is the vertical component of velocity, and as you know that bus is moving on the ground, so it is x-axis. So this is the horizontal component. So theta is equals to 26 degrees according to the formula. Tangent inverse y component upon x component. Next question is, a 1.84 kg school bag hangs in the middle of a clothesline, causing it to sag by an angle of theta is equals to 3.50 degree. Find the tension in the clothesline. First of all, what is tension? Tension is the force that is exerted or appeared in the string. So this is basically the string in which this bag is hanging in the middle. So this is the figure of this clothesline that is having some weight in the middle of this clothesline. So the tension in string is now making an angle of 3.50 degree from both ends. So whenever any force is making an angle of theta with the horizontal, so it always divide its force into its components. So there are two components. Number one is t cos theta, that is in horizontal direction. The other one is t sin theta in the vertical direction. Same for this side. This is t cos theta in horizontal component, and the vertical component will be t sin theta. Whereas this arrow downward is showing us the weight or mass of this school bag, that is 1.84. Now how can we solve this question? Basically we want to find out the direction of this tension T. So as you can see that this is T cos theta in this direction. The arrowhead direction is away from the normal or away from the mean position. Similarly this T cos theta is away. So basically they are cancelling each other's effect. There is no tension or effective component of T cos theta that is in horizontal direction. So it can be solved by conditions of equilibrium. So first condition will be summation f is equals to 0. Summation f of x is equals to 0. According to horizontal component, t cos theta is equals to t cos theta. So they cancel each other's effect. Whereas for y component, summation f of y is equals to 0. That all the forces that are acting on the vertical component will be. So there are three forces that are acting vertically. Number one is t sin theta here plus t sin theta, as we have already discussed that the forces above the mean line are positive and the forces considering the down of the mean line will be negative. So minus weight, this is minus mg is equals to 0. So mg means weight, so you have to multiply this mass with g. So by putting the values of theta and value of g, we have
this value of tension, that is 148 Newton. Find the magnitude and direction of vectors represented by the following pair of components. I am solving one part for you. There is a of x, this is a of y. So just you have to find out the magnitude by the simple formula ax square plus ay square square root. And for theta, direction. So this is basically the question of quadrants. So you have to identify the quadrant first. Okay, by seeing the values of a of y, it is positive and a of x is negative. So basically it is in the second quadrant. So first of all, find out the value of phi. Now for second quadrant, memorize the formula, that is 180 minus phi. So by putting the value, this is 119.3 degree. Another question is, vector f having magnitude of 5.5 Newton makes 10 degree with x-axis. So I am just for your understanding, I am making this force having magnitude of 5.5 Newton and 10 degree with x-axis, and the vector r with magnitude 4.3 meter makes 80 degree with x-axis. So this is 80 degree with x-axis. So you have to find out the magnitude of their dot and cross product. So dot product means f dot r is equals to fr cos theta, and for cross product magnitude will be fr sin theta, as we have discussed in cross and dot products. So for this is basically the angle of resultant. So theta 2 minus theta 1. Okay, 80 minus 10, this is theta will be 70 degree. Now just you have to put this angle theta in it, and all the values of f and r are given. So write these values and you have the answer. Question number 6. The magnitude of dot and cross product of two vectors is 6 under root 3 and 6 respectively. Find the angle between the vectors. You have to find out the angle between the vectors. So basically magnitude of dot product is a dot b is ab cos theta, that is given as 6 under root 3. Magnitude of cross product is a cross b is equals to ab sin theta is equals to 6. So to find the angle between the vectors a and b, you have to divide the equation 2 by 1. Why 2 by 1? Because sin theta upon cos theta is equal to tangent theta. So this is tangent inverse 1 upon under root 3, that is 30 degree. So this is the angle between the vectors. Now for a very important question. A uniform rod 1 meter long with weight 6 Newton can be supported in a horizontal position on a sharp edge with weights of 10 Newton and 15 Newton suspended from its ends. So this is a beam of 1 meter. So its weight will act on its center of gravity point. So this is the weight of 6 Newton at the point O. So total is 1 meter. So this is 0.5 meter over here and 0.5 meter over here. So the two weights are suspending on the both edges. So one edge is marked as P and the other edge is marked as Q. So this is a sharp point on which, so basically this is a sharp edge on which these two unequal weights are balanced at this position. Now you have to calculate basically the position of point of balance, at which position, at which distance this beam is balanced. So यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पॉइंट O है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, जो हमें पहले डिफाइन कर दिया गया है. लेकिन ये जो पॉइंट R है, इट इज़ नॉट डिफाइंड टू अस. हमने इसको खुद से एक पोजीशन के ऊपर कंसिडर किया है. ये हमारे पास वेट है 15 न्यूटन का. क्योंकि ये ज़्यादा वाला वेट है, इसका मतलब है ये जो बीम है ये इस साइड के ऊपर डाउनवर्ड पोजीशन पे गिर सकती है. इसलिए इसको यहाँ पर हमें बैलेंस करना चाहिए शार्प एज से, ताकि ये बैलेंस हो जाए और ये किसी भी साइड पर इसका वेट फॉल ना करे. सो अगर मैं ये कहती हूँ कि R से Q तक का डिस्टेंस मेरे पास x है, मुझे नहीं पता
और O से Q तक का डिस्टेंस मुझे पता है दैट इज़ 0.5 मीटर, तो फिर क्या मैं OR का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ, यानी कि 0.5 माइनस x जो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बेसिकली ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। मैं अगर इसको मालूम कर लूँ तो मैं फिर पोजीशन ऑफ बैलेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे हमें उसको सॉल्व करना है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समीशन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ आपको हॉरिजॉन्टली x एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नज़र नहीं आएगी। कितनी फोर्सेस नज़र आ रही हैं आपको, एक ये P फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वेट की वजह से, एक O फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है वेट की वजह से, एक Q फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक अपवर्ड फोर्स है R की क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है इस फोर्सेस को। सो यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी दैट इज़ बेसिकली दी अपवर्ड फोर्स। सो अब और सारी की सारी ये वर्टिकल फोर्सेस हैं। सो वर्टिकल फोर्सेस के लिए R, क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स लग रही है सो अपवर्ड फोर्स विल बी पॉजिटिव, बाकी सब डाउनवर्ड फोर्सेस हैं सब नेगेटिव में लेंगे आप, इज इक्वल टू 0। P, Q और W हमारे पास मौजूद है। सो दिस इज 31 न्यूटन। नाउ अगर हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होता, हमें R की वैल्यू नहीं मिली, तो अब हम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे जाएंगे और हमेशा यही स्टेप्स फॉलो करेंगे जब भी आपको। So for second condition of equilibrium, sum of clockwise movement must be equal to sum of anti-clockwise movements, and we know that anti-clockwise movements are taken as positive whereas the clockwise movements are taken as negative. So for this one it is basically the anti-clockwise moment. So this is F1 into R1 plus this R will be 0.5 minus x into R minus means this one, ये इस साइड पे मूव करने की कोशिश करेगा क्योंकि हम O को पिवट पॉइंट बना रहे हैं। पिवट पॉइंट का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि उसके सराउंडिंग्स में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो अगर मैं इस पॉइंट को टॉर्क बना लेती हूँ पिवट पॉइंट, सो P पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा R पे और Q पे। ठीक है, सो आपने उसके लिए फोर्सेस और उसके डिस्टेंसेस को लिख लिया। अब क्योंकि R का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम सो हमने 0.5 माइनस एक्स लिखा। अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें आंसर 5 आ जाएगा। 0.5 को 31 से मल्टीप्लाई करें इट्स 7.5 सॉरी इट्स 15.5, देन माइनस 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7.5, फिर माइनस एक्स 31 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 31x आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.41 मीटर। नेक्स्ट थिंग इज 4 मीटर यूनिफॉर्म लैडर। यहाँ पर एक लैडर पड़ी हुई है जो एक वॉल के साथ लगाई गई है, सपोर्ट दिया है उसको वॉल के साथ, इसके ऊपर एक फ्रिएक्शन ऑफ वॉल आ रहा है। ठीक है, टोटल इसकी लेंथ 4 मीटर दी हुई है। नीचे यहाँ जहाँ पर ये फ्लोर के साथ सपोर्ट हो रही है वहाँ पर मैंने दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है। एक FH का मतलब है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर फोर्स लगती है, और FN का मतलब है जो यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन के ऊपर एक फोर्स लगेगी। आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का और वर्टिकल फोर्स का। तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी जो यहाँ पे इसने ग्राउंड के ऊपर एक्सर्ट की हुई है, तभी ये हमें बैलेंस कंडीशन में नज़र आ रही है। जो एंगल ये लैडर बना रही है फ्लोर के साथ दैट इज़ 70 डिग्री, और यकीनन इस लैडर का जो वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर एक्ट करेगा, दैट इज़ बेसिकली दी एट 2 मीटर के ऊपर ये एक्ट करेगा, और वो आपको दिया हुआ है 120 न्यूटन। अब यहाँ पे मैंने कुछ टॉर्क्स एक्सर्ट करवाए हुए हैं क्योंकि ये फोर्स को टॉर्क किसके परपेंडिकुलरली हम देख रहे होंगे, हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे होंगे इस पॉइंट को एक पिवट बना लेंगे और इसके अराउंड, क्योंकि हमें यहीं की ही फोर्स कैलकुलेट करनी है जो ये लैडर फ्लोर पर लगा रही है, सो इसलिए मैं इसको पिवट बनाऊंगी और इसके अराउंड जो ये फोर्स FW है यानी कि रिएक्शन ऑफ फोर्स वॉल, और ये जो वेट डाउनवर्ड रिएक्ट कर रही है उसके ऊपर जो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों टॉर्क्स को कैलकुलेट करके मैं इसका आंसर निकाल लूँगी। सो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखें आप,
हॉरिजॉन्टल कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है ये एफ ऑफ डब्ल्यू, यानी कि रिएक्शन ऑफ वॉल। दूसरी आप यहाँ देखो इक्वल एंड ऑपोजिट आपको एक फोर्स नजर आएगी एफ ऑफ एच। सो ये एफ एच इक्वल हो गई एफ डब्ल्यू के, समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा जी एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। सो डब्ल्यू कैसे, अगर ये अपवर्ड फोर्स लग रही है तो डब्ल्यू डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। सो एफ ऑफ एन आ गया 120 डिग्री। अगर मुझे इस एफ ऑफ एच का आंसर मिल जाता है तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके लिए मुझे नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, यानी कि सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखें जी, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स को कंसिडर किया है, ए सी बी डी ई। तो अगर आप देखो बेसिकली दो ट्राइंगल्स बनते नजर आ रहे हैं, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है ए सी ई, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है ए बी डी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे, इसके ज़रिए हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था एक टॉर्क यहाँ लग रहा है, जो ये वाला टॉर्क है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एक टॉर्क लग रहा है इस वेट पर दैट इज क्लॉकवाइज टॉर्क। सो दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। सो बी डी मल्टीप्लाई बाय एफ डब्ल्यू। क्यों मैं बी डी ले रही हूँ, काइंडली देखिएगा, याद रखिएगा, ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका मोमेंट आर्म होता है। सो मैंने बी डी लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर अगेन माइनस ए ई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ये वाला डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास तो इस बी डी की वैल्यू ही नहीं है, सिमिलरली मेरे पास इस ए ई की वैल्यू नहीं है, मेरे पास सिर्फ इस ए सी की वैल्यू है जो कि 2 मीटर है, और सिमिलरली मेरे पास ए बी लेंथ की वैल्यू है जो कि 4 मीटर दी हुई है मुझे क्वेश्चन में। सो ट्राइंगल ए बी डी से मैं कहूँगी ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी डी। सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई से मैं कहूँगी कि ये जो ए सी कॉस थीटा है वो बराबर है ए ई के, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, सिमिलरली ये बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। सो ये दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस और साइन के आ जाएंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पुट करें इन ए ई और बी डी की वैल्यूज को, मेरे पास आएगा ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एफ डब्ल्यू माइनस ए सी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। ए बी की वैल्यू 4 है, साइन 70 इंटू एफ डब्ल्यू मुझे नहीं मालूम, यही मैंने फाइंड आउट करना है। ए सी की वैल्यू हाफ है उसकी, सो दिस इज 2 कॉस 70 इंटू 120। सो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर एफ डब्ल्यू आ जाएगा 22 न्यूटन। सो फाइनल मुझे बेसिकली एक मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा उन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट से। सो मैंने दोनों फोर्सेस का स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट लिया, और मेरे पास आंसर आ गया 122 न्यूटन। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको बड़े हमें गौर से और बड़े ईजी स्टेप्स के साथ ये सॉल्व कर लिए जाते हैं। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमें बीम नज़र आ रही है, और इस बीम के ऊपर हमें एक वेट नज़र आ रहा है एक पॉइंट के ऊपर जो कि 220 kg है, और दो जगह पे फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक आर ए अप साइड पर और एक आर बी अप साइड पर है। अब आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा वो पता चल रहा है 2.4 मीटर है आर बी से, और 5.6 मीटर है आर ए से। अब आपको बेसिकली आर ए और आर बी दोनों फाइंड आउट करने हैं। सो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे हम, समीशन एफ इज इक्वल्स टू 0, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 450 मल्टीप्लाई बाय 9.8 प्लस 220 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब ये कहाँ से आया 450? 450 आपके पास बीम का वेट है, ठीक है, यानी कि बीम का वेट कहाँ एक्ट करता होगा, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। बीम का वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करता है। तो अगर आप देखो तो ये जो 5.6 प्लस 2.4 है ना, बेसिकली ये 8 मीटर बनता है। इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा वहाँ पे डाउनवर्ड वेट एक्ट करता होगा, यानी कि 4 मीटर के ऊपर। सो अपवर्ड दो फोर्सेस लग रही हैं, एक आर ए और एक आर बी, और डाउनवर्ड भी दो फोर्सेस लग रही हैं, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर वेट ऑफ बीम लाई कर रहा है, और दूसरा ये जो उन्होंने लोड सपोर्ट लोड जो एक इसके ऊपर सस्पेंड किया हुआ है बीम पर 220 kg का, ये वाला, ठीक है। सो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, ये आंसर आ गया। सो समीशन टॉ इज इक्वल टू 0,
अब मुझे आर ए भी फाइंड करना है, आर बी भी फाइंड करना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप इन दोनों में से किसी को भी पिवट बना सकते हैं। अगर मैं आर ए को पिवट बनाऊंगी, इसका मतलब ये है कि आर ए के ऊपर अब कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता होगा, इसलिए इसके अराउंड टॉर्क प्रोड्यूस होंगे। सो अगर इसके अराउंड टॉर्क प्रोड्यूस होंगे तो एक इस जगह पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक इस लोड के अराउंड टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, और एक वो जो वेट हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर कंसिडर किया था, एक वहाँ पर जो वेट ऑफ बीम है उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। सबसे पहले आर बी मल्टीप्लाई बाय आर कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस मोमेंट आर्म है और ये वो फोर्स है आर बी की। मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल्स टू एम सी। एम सी का मतलब है मास एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर इस जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर इसका मास एक्ट कर रहा है जो 450 kg है। मल्टीप्लाई बाय जी करें ताकि आपके पास वेट निकल आए, मल्टीप्लाई बाय आर सी। अब मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर डिस्टेंस हो जाएगा 4। सिमिलरली ये m1, मैंने खुद से इसको नाम m1 दे दिया है, ये m1 है जो लोड सस्पेंड किया हुआ है 220 kg का, मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय r1। इसका डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है इधर से लेकर यहाँ तक, दैट इज 5.6। अब जस्ट आपने इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई और प्लस करना है और डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो आपके पास आर बी आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, आपके पास आर ए आ जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नाउ फॉर some short questions. Question number 1. Is it possible to add 3 vectors of equal magnitude but different directions to get a null vector? नल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? नल वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है मगर इसकी डायरेक्शन को हम 100% एश्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन होगी, मगर आप कहोगे कि जी इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो भी डायरेक्शन कैसे होगी? ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। इट मे और मे नॉट हैव एनी डायरेक्शन बट इट मैग्नीट्यूड इट 0 इज नोन एज अ नल वेक्टर। ऐसे 3 वेक्टर्स को ऐड करें जिसका आंसर 0 आए, तो आप देखो ये वेक्टर ए मैंने लिया, एक वेक्टर बी मैंने लिया और एक वेक्टर सी लिया और इनको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर दिया। अगर मैं इनको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करूंगी तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा आंसर? 0 के, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट है मगर इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बी नेगेटिव? गिव अ प्रूफ ऑफ with the example. If the angle between A and B are greater than 90 degree, अगर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर है 90 डिग्री से बड़ा आएगा तो कॉज का एंगल जो है आपके पास वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव आ जाएगा। जैसे एफ डॉट आर कॉज थीटा, अगर मैं एक एफ की वैल्यू ले लूँ, एक आर की वैल्यू ले लूँ और कॉज को 90 डिग्री से बढ़ा लूँ, जैसे कॉज 180, कॉज 180 माइनस होता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का नेगेटिव आ गया। वाई आ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम? वन फोर्स लग रही है, अगर किसी भी जगह पर एक फोर्स लग रही है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई दूसरा वेक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि फिर वो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता रहेगा और वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। Question number 9. Never use a large wrench to tighten a small bolt because there is a greater risk that the bolt will break if it is applied a larger torque on that bolt due to the large moment arm of this wrench. Next thing is there is a dot product that is given that A dot B is 0. Similarly, the cross product of 2 vectors A cross B is 0, whereas vector A is non-zero and we don't know about vector B. Then what can you conclude about B? Simple ये बात होगी कि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है वेक्टर A अगर वो कह रहे हैं कि ये नॉन ज़ीरो है तो फिर यकीनन जो वेक्टर बी होगा वो नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो मगर उसकी डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी होगी।
टू ओपन अ डोर दैट हैज़ दी हैंडल ऑन द राइट, जैसे इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पर इसका हैंडल है और इसका हिंज पॉइंट सपोर्ट जो दी हुई है डोर को वो है आपके पास लेफ्ट पर। आप इसको टॉर्क लगाकर टॉर्क अप्लाई करके डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, इस डोर का टॉप व्यू देखें, तो आपके पास टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा या एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। सो ऑफ कोर्स अगर मैं इस डोर के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ इस तरह और ये रोटेट कर रहा है, ओपन हो रहा है, तो टॉर्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज व्यूड फ्रॉम दिस टॉप पोजीशन। This is all for today. Thank you. Allah Hafiz.